guys, it's been a very long time that we have been connected, and the exam is about to come. It's less than 60 days remaining. So, how can we proceed for the next, let's say, 55 days or 56 days? So, the first of all, I want everybody who are listening to this video, who are NEET PG aspirants, who are hardcorely prepare for that. I want everybody to first of all focus on whatever you have read in past 8 to 10 months. जो आपने पिछले past 8 to 10 months में पढ़ा है, focus on that part only, because it's a business. The NEET PG coachings and NEET PG syllabus is all about a business nowadays. Lots of guys are doing 5-day classes, 3-day classes, 6-day classes. Do not run for them. There is no need to go for anything like crash course at this time. At this time, just have to focus on whatever you have read. The thing you have read, just revise them. Just revise them. Just read and read them. Even if you have done something like because lots of guys has done the DVTs, the BIBE, the whatever you can say BTR. If you have done that in the past, revise that only. Do not go for a new thing at this time. It will lead to sudden deterioration in your preparation, because there are two kinds of memory. One is audio memory, one is visual memory, and visual memory helps a lot in the exam. Sometimes when you going for the answers in the MCQs, at some point you get to see your visual memory in your mind in the exam also. So please just read your subjects and just revise them. Don't go for a new thing. Number two thing, which is very important at this time, how to revise, how to keep focus, how to revise. The revision technique is always a simple technique. The thing I follow, the thing I think lots of guys follow, which was 0, 1, 7 and 28. You all, I think everybody knows this. 0 means whatever you have read today, just give 1 hour for that for tomorrow, which is the first day, and revise that same thing after 7 at the 7th day, so that you can remember all these points, and then revise at 28th day. This is very important because this is a formula for the long term memory. You need a memory for more than 2 months at this point of time. So please remember this, and this is very important. I'm still use this I still use that technique in my life also, daily routine life also, because we have to remember lots of scores, lots of endoscopy index and lots of things. Please remember. Third point which I will say today is that I have also said in my previous videos also, that is integration. Go for integration. Integrate your subject. And now at this point of time, whatever you have read like medicine, patho, pharma, micro, you can also see the previous test series also, whatever questions have been asked regarding that, and so that you can remember the topics whatever you have to read, which is high yield topics, which I also have made the video in the past. So please remember those integration. You have to mainly make the 3 integration. One is the medicine aspect, one is the surgical aspect, and one is the miscellaneous aspect. The medicine aspect includes physiology, pathology, pharmacology, microbiology, medicine and pediatrics. Surgical aspect include anatomy, your forensic, your surgery, your obs gynae, your orthopedics or anesthesia. And third is miscellaneous like PSM. PSM is very important at this point of time, because PSM will give you rank. Selection decides by the medicine, surgery, patho, because everybody reads this. So selection is based on this, but the rank decided by the PSM, minor subjects. This give you the rank. At this point of time, I will not say कि you just skip all your topics and read psychiatry and read dermatology. No, I will not say this, because this is not true. Rank. First of all, you have to go to the average score, then you higher score, then topper score. So that's what I want to say, because everybody has their own potential. Like somebody at this point of time have done 5 to 6 revisions. Somebody is doing the first revision. ऐसे कई लोग होंगे जो अभी फर्स्ट टाइम पढ़ने बैठे होंगे.
तो जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ने बैठ रहे हैं, दे कैन यूज द वेरियस क्रैश कोर्स. आई हैव नो ऑब्लिगेशन, आई हैव नो प्रॉब्लम फॉर दैट. जिन्होंने अभी तो कुछ प्रिपेयर नहीं किया, दे कैन ऑब्वियसली गो फॉर क्रैश कोर्स, दे हैव टू गो फॉर क्रैश कोर्स, बिकॉज उसके अलावा तो ऑप्शन बचेगा नहीं. बट जो लोग, क्योंकि आजकल मैक्सिमम लोग मेरो, भाटिया, डेम्स, मैक्सिमम काइंड ऑफ कोचिंग्स यूज करते हैं, तो दे हैव देयर ओन नोट्स. एंड प्लीज, so please focus on that topics and focus on your course syllabus and add your points into them, and then just keep revising the things. Just make sure you will complete 80% of your syllabus in your notes. आप अगर 80% कवर कर लेंगे, if you complete 80% of the syllabus, you will get a rank. And just remember the integration and remember the high yield topics. High yield topics की वीडियो मैंने भी कई सारी बनाई थी पहले, और I am trying to make some new videos also regarding high yield topics, or something regarding that which I can think which will be the prospective new questions in the NEET PG 2024. Guys, ज़्यादा टेंशन माइंड में लेनी नहीं है. तो पहली चीज़ तो कॉन्फिडेंट रहना है. दूसरी चीज़ डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है. नंबर थर्ड थिंग, जो आपने किया है पिछले 8 महीने में वही चीज़ सेम करनी है, बट मोर स्मार्टर वे. अब वो नहीं कर सकते कि भाई मैं बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ के खत्म करूँ नोट्स. ऐसा अब इस टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए. इस टाइम पे यू शुड नो कि मुझे कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, किस टॉपिक को देना है. इफ़ यू जस्ट लाइक, अब आपको पता है कि भाई मैं हर बार एवरी टाइम मैं कार्डियोलॉजी में फंस जाता हूँ, मुझे ईसीजी में दिक्कत आती है, मुझे मरमट में दिक्कत आती है, मुझे कार्डियो के टॉपिक में दिक्कत आती है. यस, डेफिनेटली यू कैन गो एंड रीड दैट पार्ट इफ यू लाइक. इफ लाइक समबडी लाइक मैं हूँ, माई वीकेस्ट सब्जेक्ट वाज सम, यू कैन से पीएसएम वाज माई वीकेस्ट सब्जेक्ट. मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी पीएसएम में. तो फर्स्ट आई फाउंड आउट कि मुझे पीएसएम दिक्कत किस चीज़ में आ रही है. मुझे दिक्कत आ रही थी पीएसएम में मुझे बेसिक टर्म समझ में आ नहीं रही थी. देन I asked my friend to help me. Then he helped me कि भाई तू इसको ऐसे कर ले, ज़्यादा टेंशन मत ले. फिर मैंने विवेक जैन के नोट्स मंगाए, जो बहुत छोटे नोट्स थे, मैंने वो जल्दी से पढ़े, उसको समझा, बस वही पढ़ के चला गया. मैं लिटरली जिस दिन एग्जाम था उसके एक दिन पहले भी मैं पीएसएम में पढ़ रहा था, बिकॉज वो मेरा सब्जेक्ट था, वो रैंकिंग सब्जेक्ट है, वो रैंक दिलाता है, मेरा वो वीकेस्ट था. मैं डिसाइडेड टू रीड दैट कम्प्लीटली, नॉट कम्प्लीटली, 80% मैंने उसको कवर किया. जो चीज़ समझ आती है वो मैंने समझने की कोशिश करी. जैसे कि कुछ ऐसी थी जो मैंने कभी नहीं पढ़ी थी, जैसे बायोस्टैटिक्स मैंने कभी नहीं पढ़ी थी, मैं छोड़ के चला गया. भाई मैं नहीं पढ़ सकता, मैं छोड़ गया. जो पढ़ सकता था वो पढ़ के गया हूँ, और आई गॉट गुड रैंक, डबल डिजिट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच. आई ऑलवेज न्यू कि मेरी पैथोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, मेरी फार्माकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, मेरी मेडिसिन स्ट्रॉन्ग है, मेरी सर्जरी भी स्ट्रॉन्ग है, मेरी ऑर्थो भी स्ट्रॉन्ग, गाइनी भी स्ट्रॉन्ग है. तो मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट मैंने इंक्लूड करा है. मेरे वीकेस्ट में पीएसएम आया, मेरे वीकेस्ट में बायोकेमिस्ट्री मेरी बहुत वीकेस्ट थी. तो बायोकेमिस्ट्री मैंने ऐसे पढ़ी है जैसे कि कोई बच्चा पहली बार बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहा है. मैंने कुछ 15 से 20 पेज की अपने खुद के नोट्स बनाए. 15 से 20 पेज के नोट्स बनाए मैंने अपने खुद के, और मैंने सारे क्वेश्चन मेरे के इसमें लिख लिए. सारे इसमें अच्छी जो भी चीज़ें मुझे मिली वो मैंने लिख ली. मैंने कोई नोट्स नहीं पढ़े, मैंने वही पढ़ के चला गया. मैं लिटरली वही सब करके आया हूँ मैं, बिकॉज मेरे को कई चीज़ समझ में आती नहीं है. लाइक पीएसएम मुझे अभी भी समझ में नहीं आती, मुझे बायोकेमिस्ट्री अभी भी समझ में नहीं आती कैसे करनी होती है, बिकॉज वो बहुत वोलेटाइल चीज़ है. बायोकेमिस्ट्री इतनी वोलेटाइल है, आज पढ़ो कल भूल जाते हैं. जो चीज़ समझ में आती है वो तो चलो ठीक है भाई, पता है हमें इसी समझ में आती है, इसी हमें समझ ली एक बार तो हमें आगे दिक्कत नहीं आएगी. हमें बस कुछ चीज़ याद करनी है. बट पीएसएम, बायोकेमिस्ट्री, ये रैंकिंग सब्जेक्ट है, आपको रैंक दिलाते हैं, तो इनको माइंड में एकदम थोरोली रखना है. बायोकेमिस्ट्री तो आप अपने हिसाब से छोटी करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर साल क्वेश्चन तो वहीं से अब तो वैसे ही 5-6 क्वेश्चन आते हैं. हमारे टाइम पे तो 10-15 क्वेश्चन आते थे बायोकेमिस्ट्री, तब तो आई थिंक 5-6 क्वेश्चन आते हैं बायोकेमिस्ट्री. तो प्लीज़ अकॉर्डिंगली तैयार करें. जैसे एनाटॉमी है, अपने हिसाब से उसको तैयार करें, बिकॉज यू कैन नॉट गिव द होल टाइम टू एनाटॉमी. जस्ट अपने माइंड को यूज़ करें, स्मार्ट वेज को यूज़ करें, और एनाट को तैयार करें, सच एज फिजियो, सच एज बायोकेमिस्ट्री, सच एज पीएसएम, एंड सच एज अदर सब्जेक्ट लाइक साइकेट्री, डर्मेटोलॉजी, बिकॉज दे विल नॉट गिव यू द मैक्सिमम मार्क्स, सच एज खासकर डर्मा की बात करें, साइकेट्री की बात करें. डर्मेटोलॉजी में तो आई थिंक हर साल वो 2 क्वेश्चन नए डालते हैं. वो हर साल 2 क्वेश्चन ऐसे खतरनाक डाल देते हैं जिनको पता ही नहीं होता क्या आंसर आता है. लास्ट ईयर आया था एक, वो स्टोन कटिंग में काम करता है, उसको
वाइब्रेशन की वजह से उसको वो दिक्कत आ गई थी हाथों में। एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर की, ड्यू टू वाइब्रेशन इट कॉजेस दी, आई थिंक कुछ क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर डर्मेटोलॉजी का। वैसे क्वेश्चन आते हैं हर साल डर्मेटोलॉजी से। तो जो चीज़ हमारी स्ट्रॉन्ग है उसको स्ट्रेंथन करना है, जो हमारी वीक है उसको इतना करना है कि हम लोग 70% तक अपने माइंड को यूज़ करके उसको आंसर कर सकते हैं। इतना ही तैयारी करनी है, बिल्कुल भी स्ट्रेस लेना नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ वी ऑलवेज प्रिपेयर फॉर 170 क्वेश्चंस एंड देन वी कैन एबल टू सॉल्व 150-155 क्वेश्चंस। ये होना चाहिए लाइफ का फंडा। ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है, ठीक है। अगर किसी के मार्क्स 130-125 के रेंज में आ रहे हैं उसको तो बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। जस्ट अपने टॉपिक्स को इकट्ठा करें, भाई मेरे को इसमें दिक्कत आ रही है, व्हाट आर द थिंग्स आई एम लेकिंग एट, जस्ट उनको इन्यूमरेट करना है और जस्ट अभी इतना टाइम है कि उनको जाके पढ़ सकते हैं हम लोग। Okay guys, then next I'll make a video on the topic such as test series, question bank, high topics, the how to utilize the other things also. So video बाद में बनाएंगे, but अभी हाल फिलहाल के लिए just remember thing, step 1 is don't go for distractions, just keep it simple, read whatever you have. Number 2, 0 1 7 28 technique, please remember that. Number 3 is integration, इंटीग्रेट करें और प्लीज़ फोकस रहें, यू विल बी गेटिंग अ वेरी गुड रैंक।